हाँ, यस डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा मेमोरी कम बची हुई है तो बीच में लैप्स हो जाता है, तो कई बार लेक्चर 2-4 मिनट छोटा हो सकता है। मैं डबल भी कर दिया करूँगा अगर ऐसा होगा। हाँ, लास्ट में हमने कल परसों आपको बताया था, आई थिंक टोटली डिस्कनेक्टेड के बारे में। ठीक है, लोकली डिस्कनेक्टेड वो केवल एक पॉइंट के लिए अगर उसकी नेबरहुड कनेक्टेड है तो वो लोकली कनेक्टेड कहलाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। दिस इज कॉम्पैक्टनेस। नेक्स्ट चैप्टर है ये, चैप्टर 3 कह लीजिए। दिस इज कॉम्पैक्टनेस। इंपॉर्टेंट लेसन है, एग्जामिनेशन में छोटी छोटी बातों पर भी पूछा जाएगा, बिकॉज पेपर ऑब्जेक्टिव आना है और डिस्क्रिप्टिव भी काफ़ी अच्छे सवाल इसमें बन जाते हैं। ओके, चलिए इसमें नंबर 1 है ओपन कवर एंड सब कवर। ओपन कवर एंड सब कवर। ओपन कवर एंड सब कवर। लिखिए, इफ X is a topological space, if X is a topological space and A is a subset of X, also let थोड़ी देर के लिए मानिए C this is G lambda belong to arbitrary. Here G lambda is open set, then it is called collection of open set. Is a collection of open set. Is a collection of open set. Now, if this collection cover to A if this collection cover to A then it is called open cover for A, because A subset है स्पेस X का, then it is called open cover for A. And it can be written as A is subset of union of G lambda belongs to arbitrary. It should be, that is A is subset of union of G lambda belongs to arbitrary. तब G lambda belongs to arbitrary जिसे हमने C नाम दिया है is known as open cover for A. और स्पेशली it is said to be open cover for X, क्योंकि X पूरा स्पेस है, वो सबसेट नहीं हो सकता किसी का, तो इक्वल फॉर्म में लिखें. Also it is said to be also C
which is G lambda, lambda belongs to arbitrary ring, is called open cover for X. Is called open cover for X if X is equal to union of G lambda, lambda belongs to arbitrary. ओके राइट, जरा ध्यान दीजिए, अगर C में से हम कुछ ओपन सेट्स को लें और उसे C डैश का नाम दें, यानी C डैश अगर C का सब कलेक्शन है और तब भी वो A को कवर करता है तो वो फाइनाइट सब कवर कहलाता है किसका? A का. इफ फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ C sub collection of C cover to A, then C dash is called C dash cover to A, then C dash is called सब कवर for A and similar for X. And similar for X. If this बल्कि फाइनाइट को अलग कर दिया, सब कलेक्शन ही लिखे. अगर इस सब कलेक्शन C डैश में फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हैं तो ये फाइनाइट सब कवर कहलाता है. इफ C डैश हैज फाइनाइट एलिमेंट्स then it is called finite subcover for A. Then it is called finite subcover for A. और सिमिलरली फॉर X, यानी अगर X का भी फाइनाइट सबकवर कोई है, ओके, इट शुड बी. तो दीज आर द डेफिनेशन. चार डेफिनेशन मैंने आपको बताई. ओपन कवर और सब कवर क्या होता है, और फाइनाइट सब कवर और इनफाइनाइट सब कवर क्या होता है. ओके, चलिए. नंबर 2 हेडिंग डालिए कॉम्पैक्टनेस. कॉम्पैक्टनेस कॉम्पैक्टनेस लिखिए. इफ X is a topological space and A is subset of X, then A is said to be compact then A is said to be compact
if it has a finite subcover, 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 i.e. if G lambda belongs to arbitrary, आप चाहें तो C का नाम दे दीजिए, is the collection of open cover such that is the collection या is the cover for A, i.e. A is subset of union of G lambda, बल्कि subset of, जो भी subset है, lambda belongs to arbitrary, then a finite subcollection C dash of C, where C dash is equal to G dash lambda I, एच I 1 से लगाकर सपोज करिए कहां तक, m तक, ऐसे कहते हैं, आल्सो कवर टू A, इज ए फाइनाइट सब कवर फॉर A, ये भी आप बोल सकते हैं, is a finite subcover for A, i.e. A is subset of G lambda, G lambda 1 union G lambda 2 union G lambda 3 etc. and so on G lambda में, it should. Okay, also for space X, also for space X, also for space X, if C is equal to G lambda, lambda belongs to arbitrary means collection of open set है, is open cover for X, चूंकि ये स्पेस है तो इसके लिए इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, then X is equal to union of G lambda, lambda belongs to arbitrary, अगर ये open cover है तो ऐसे लिखा जाना चाहिए, and also there are finite number of such collections, say G lambda 1, G lambda 2, G lambda 3, etc. Union of G lambda n की फॉर्म में इसे finite number of members of this collection की फॉर्म में, जिसे finite subcover कहते हैं, x के लिए ये एग्जिस्ट करेगा, और चूंकि पूरा स्पेस है तो इक्वल का सिंबल आएगा, ठीक है। सबसेट के लिए आता है, जब पूरा स्पेस होता है तो वो किसी का सबसेट नहीं होता, तो इक्वल का ही सिंबल लिखेंगे, ओके, दिस शुड बी। तो ये मतलब हुआ, हाँ, कॉम्पैक्ट का
तो कॉम्पैक्ट कब कहा जाता है किसी भी सबसेट के लिए, जब उसका हर ओपन कवर फाइनाइट सब कवर कंटेन करे, यानी उस ओपन कवर के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स की हेल्प में उसे लिखा जा सके। ओके, इसी टाइप से अगर स्पेस x है तो उसके ओपन कवर के फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर के द्वारा x को लिखा जा सके, और पूरा स्पेस है तो ये सबसेट नहीं बल्कि इक्वल लिखा जाता है। ओके, थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर या इलस्ट्रेट करने के लिए रिमार्क के तौर पर लिख लीजिए, सपोज करिए ये है आपका r माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसमें c1 माइनस n से प्लस n और c2 यस कितना -3 into 3n, तो दोनों ही ओपन कवर हैं। देन c1 c2 बोथ आर ओपन कवर फॉर r के लिए, क्यों? मान लीजिए n क्या है, ये तो नेचुरल नंबर है ही यहाँ भाई, -1 से 1 -2 से 2 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। बोथ आर, क्योंकि n भी इनफाइनाइट तक जाता है, 3n भी इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट, लेकिन c2 सब कवर हो जाएगा c1 का, राइट, क्योंकि वो उसे कवर कर रही है। ओके, राइट, आर बोथ दी ओपन कवर are both the open cover for R, and also C2 is subcover of C1, and also C2 is subcover for C1. C2 is subcover for C1. It should be. Is C subcover for C2. नेक्स्ट इसमें नंबर 3 हेडिंग डालिए, हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस हाउसडॉर्फ स्पेस देखिए, a space X either it is metric space or topological space or any other space as you. If X is any space, if X is any space, then it is said to be Hausdorff. Then it is said to be Hausdorff's space if for two distinct points xy in X, if for two distinct points xy in X, there exist neighborhood m and n, there exist neighborhood NBD शॉर्ट में लिख रहा हूं m and n of x and y respectively,
x की सपोज करके m है और y की m है, of x and y respectively such that m intersection n is equal to 5. इन नाइबरहुड के इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जांपल, रियल लाइन के ऊपर आप कोई भी दो पॉइंट कितने भी नजदीक ले रहे हैं, सपोज करके ए बी, तो उनकी नाइबरहुड दो कम से कम ऐसी जरूर होंगी जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा. ओके, तो R is positive. R is positive under usual topology. Under usual topology. Under usual topology. Under usual topology. Okay. So this is the Hausdorff space. नेक्स्ट इसमें थ्योरम लिखिए. To prove that compact subset of a Hausdorff space compact subset of a Hausdorff space is always closed. Is always closed. हमेशा कैसा होता है? क्लोज्ड होता है. ओके, देखिए प्रूफ. लेट x is a Hausdorff space x is a Hausdorff space and A is a compact subset of x. Compact subset of x. We wish to prove that A is closed. We wish to prove that A is closed. We wish to prove that A is closed. We wish to prove that A is closed, i.e. A dash is open. i.e. A dash is open. इसके लिए हमने माना for this let P belongs to A dash and let Q belong to A. और चूंकि A डैश और A आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं और X कैसा है, चूंकि X में जाएंगे दोनों, Hausdorff है and X is Hausdorff,
there exist neighborhood एंड सपोज करिए ए डैश के पॉइंट के लिए पी में सीरीज शो कर रहा हूं, क्यू भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि है तो एक्स के ही एंड ऑफ पी एंड एंड क्यू आई ऑफ क्यू यानी ए के पॉइंट के लिए सच दैट एन क्यू आई इंटरसेक्शन एन क्यू आई yes is equal to 5 Hausdorff space, right? Also NQI A में आने वाले हर पॉइंट के लिए नाइबरहुड है यानी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है और A हमारा कॉम्पैक्ट है तो इसके फाइनाइट सब कवर के द्वारा A को कवर होना चाहिए। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं also NQI make a open cover make an open cover for A make an open cover for A and A is compact and A is compact so it has finite subcover so it has finite subcover कौन A सपोज करिए A कवर हो जाता है NQI के हाईएस्ट n एलिमेंट्स के द्वारा फाइनाइट सबकवर से वन का नाम दे सेकंड का दे रहे नाउ आल्सो लेट सपोज करिए NQI का फाइनाइट यूनियन I1 से लगाकर n तक जिसे हमने n से रिकॉल किया और इसका जो इंटरसेक्शन है NQI का इसे हमने यस m से शो किया। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। नाउ वी क्लेम n इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 5। नाउ वी क्लेम क्या है दिखाना पड़ेगा कि n इंटरसेक्शन n किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, राइट। इसके लिए हमने एलिमेंट माना लेट यस x एक एलिमेंट है जो n में जाता है तो निश्चित रूप से x किसी न किसी NQI में जाएगा, राइट, जो कि किसका है, किसके नाइबरहुड है, किसी पॉइंट A के नाइबरहुड है, ओके। लेकिन MQI और NQI का इंटरसेक्शन 5 है तो ये निश्चित रूप से किस में नहीं जाएगा, NQI में नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी एलिमेंट n में आता है तो वो m में नहीं आएगा। इसका मतलब n इंटरसेक्शन n किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ओके। आल्सो इसे आप चाहे तो फिट कह लीजिए यूनियन ऑफ NQI एज I1 से n तक आपने A सबसेट है दिस, यानी A सबसेट है किसका, n का। आल्सो A इज सबसेट ऑफ n। तो जब n के साथ ही m का इंटरसेक्शन 5 है तो उसका A के साथ भी इंटरसेक्शन 5 होगा, ओके। इसका मतलब होगा कि m इज सबसेट ऑफ A डैश, निश्चित रूप से m इंटरसेक्शन है 5 है, इसका मतलब m किसका सबसेट है, A कॉम्प्लीमेंट का, A डैश का। A डैश से मतलब x माइनस A का। और m क्या है, बेसिकली दिस इज फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नाइबरहुड। तो ये क्या होगा,
ओपन होगा। आल्सो M is open because it is the finite intersection of open set या neighborhood. Also M is open. इसका ये मतलब हुआ कि कोई भी पॉइंट आप ले लें, ओके जी, उसके कोरेस्पोंडिंग एक नाइबरहुड M ऐसी है जो कि A सबसेट है A डैश का, तो M इज ओपन, शो A डैश इज ओपन। A डैश में कोई भी एलिमेंट आप ले लें, क्योंकि X आपने एलिमेंट लिया A डैश का और उसमें क्लेम किया आपने इट शुड बी ओके, ठीक है। शो A डैश इज ओपन, और A डैश अगर ओपन है तो A कैसा होगा, क्लोज होगा। इंपॉर्टेंट है अपने आप में ये। तो हमने प्रूव किया कि अगर किसी हाउसडॉर्फ स्पेस का कॉम्पैक्ट सबसेट लिया जाए तो वो हमेशा क्लोज होता है। ओके, कल करेंगे, कंटिन्यू। ओके, थैंक्स।